स्वागत है। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੀ ਹੋਈ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਸਾਹਿਤਕ ਕਿਰਨਾਂ ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਵੀ ਹਨ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਮੋਢੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਮੋਢੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਮੋਢੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਰਚੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਲਗਣਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਆਧੁਨਿਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹ ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਅਖਵਾਈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 5 ਦਸੰਬਰ 1872 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਮੋਢੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਭਾਵ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਥਾਟ ਵਿਚਾਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਫਰਸ਼ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਅਰਸ਼ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਨੂੰ। ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਦਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨੰਦ ਭਰਜਾਈ, ਰਾਣਾ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ, ਮਟਕ ਹੁਲਾਰੇ, ਬਿਜਲੀਆਂ ਦੇ ਹਾਰ, ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਹਾਰ, ਪ੍ਰੀਤ ਵੀਣਾ, ਕੰਬਦੀ ਕਲਾਈ, ਮੇਰੇ ਸਾਈਆਂ ਜੀਓ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਵਿ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਮਾਂ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਰਾਹੀਂ ਕਵੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਆਓ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨੀਏ ਅਤੇ ਜਾਣੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਰਹੀ ਵਾਸਤੇ ਕਤ ਸਮੇਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਮੰਨੀ, ਫੜ ਫੜ ਰਹੀ ਤਰੀਕ ਸਮੇਂ ਖਿਸਕਾਈ ਕੰਨੀ। ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਸਕੀ ਰੋਕ ਅਟਕ ਜੋ ਪਾਈ ਪੰਨੀ, ਰਹੀ ਵਾਸਤੇ ਕਤ ਸਮੇਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਮੰਨੀ। ਤ੍ਰਿਖੇ ਆਪਣੇ ਵੇਗ ਗਿਆ ਟੱਪ ਬੰਨੇ ਬੰਨੀ, ਹੋ ਅਜੇ ਸੰਭਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕਰ ਸਫਲ ਉਡੰਦਾ ਜਾਵਦਾ। ਇਹ ਠਹਿਰਨ ਜਾਚ ਨਾ ਜਾਣਦਾ, ਲੰਘ ਗਿਆ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆਵਦਾ। ਰਹੀ ਵਾਸਤੇ ਕਤ ਸਮੇਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਮੰਨੀ, ਫੜ ਫੜ ਰਹੀ ਤਰੀਕ ਸਮੇਂ ਖਿਸਕਾਈ ਕੰਨੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੀ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੁੱਜੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕੁੱਜੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਮੁੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਆਓ ਹੁਣ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਹੀ ਵਾਸਤੇ ਕਤ ਸਮੇਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਮੰਨੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਵਾਸਤੇ ਕਤਨਾ ਮਤਲਬ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨਾ, ਤਰਲੇ ਕਰਨਾ, ਵਾਸਤੇ ਪਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਤਰਲਾ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਸ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਏ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਉਹ ਤੁਰਦਾ ਹੀ ਗਿਆ। ਫੜ ਫੜ ਰਹੀ ਤਰੀਕ ਸਮੇਂ ਖਿਸਕਾਈ ਕੰਨੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਫੜ ਫੜ ਕੇ, ਤਰੀਕਣਾ ਮਤਲਬ ਖਿੱਚਣਾ, ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਪੱਲੂ ਫੜ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਿੱਚਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਆਪ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਮਾਂ ਰੁਕ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ, ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ,
पर समय ने अपनी कन्नी मतलब अपना पल्ला छुड़वा के अगे अगे खिसकदा गया। किवें न सकी रोक अटक जो पाई पन्नी। मैं समय नूं किसी भी तरह नहीं रोक सकिया। किवें न सकी रोक किसी भी तरह नहीं रोक सकिया। अटक जो पाई, इस तो बाद है कौमा। तो मैं जो भी समय दे अगे अटक मतलब रुकावट पाई, समय ने वो पन्नी, समय ने उसनूं तोड़ दिता, उस रुकावट नूं खत्म कर दिता ते समा अगे ही अगे तुरदा चला गया। तो इन्हां लाइनां चों सानूं पता लगता है कि हर व्यक्ति समय नूं रोक के रखने की कोशिश करता है। उसनूं लगता है भी मैं समय नूं रोक लूँगा, कोई गल नहीं, हुण नहीं, मैं फिर काम कर लूँगा, पर समा किसी लई नहीं रुकदा। हुण अगलियां लाइनां आपां वेखदे हां। त्रिखे अपने वेग गया टप बन्ने बन्नी। हुण इन्हां लाइनां विच कवि कह रहा है कि जिहड़ा समय उसका वेग मतलब उसकी चाल, उसकी गति, त्रिखे मतलब तिखे, बहुत तिखे, तेज हैं। तो समय की चाल बहुत ज़्यादा तेज़ है। गया टप बन्ने बन्नी, समा सारे बन्ने बन्नी मतलब हद बन्ने सारे टप के चला गया। हो अजे संभाल इस समय नूं कर सफल उड़न दा जावदा। तो इन्हां लाइनां विच हुण कवि मनुख नूं सुचेत कर रहे हैं। हो अजे संभाल इस समय नूं, भी तू इस समय नूं हुणे ही संभाल लै चंगी तरह। हुण मतलब जो वर्तमान है, जो तुहाडे हत्थ विच है, इस समय नूं, इस वर्तमान नूं संभाल लै। कर सफल उड़न दा जावदा, यह नहीं तो निरंतर तुरदा जा रहा, उड़दा जा रहा, मतलब तुहाडे तो दूर जाता जा रहा। असी सिर्फ एक ही समय नूं प्रयोग कर सकते हैं जो कि वर्तमान है, जो कि प्रेजेंट है। ना तो असी पिछले समय नूं अपने वल खिंच सकते हैं, ना ही भविख नूं अपने वल खिंच के बन सकते हैं। ये ठहरन जाच न जानदा, लंघ गया न मुड़ के आवदा। समा जिहड़ा है वो रुकना नहीं जानता, इसनूं नहीं पता भी किस तरह रुकीदा है। ते जिहड़ा समा एक बारी लंघ जावे, लंघ गया न मुड़ के आवदा। जिहड़ा समा एक बारी लंघ जावे वो कदी भी मुड़ के नहीं आउंदा। तो इस कविता चों सानूं समय का महत्व पता लग रहा है कि किस तरह समा निरंतर चलता रहिंदा है। जिहड़ा मर्जी जिन्नियां मर्जी कोशिशां कर ले, चाहे खिंच के कोशिश कर ले, चाहे मिन्नतां तरले कर लवे, समय ने नहीं रुकना। तुसीं जिहड़ी मर्जी रुकावट पा के वेख लो समय अगे, समय ने तुरदा ही जाना है। इस करके सानूं समय की कदर करनी चाहिए है। तो जो समा इस समय साडे कोल है, प्रेजेंट वर्तमान साडा, उसनूं वध तो वध चंगी तरह सदउपयोग, उसका मतलब उसका सही उपयोग करना चाहिए है, तां जो बाद विच सानूं पछताउणा ना पवे। तो यह साडी कविता समा। हुण असीं इस कविता का अभ्यास हल करांगे। अभ्यास विच पहला प्रश्न है, भाई वीर सिंह ने समय बारे की क्या है। तो इसका उत्तर असीं दे सकते हाँ, भाई वीर सिंह ने क्या है कि समा बहुत बलवान है, ये कभी भी नहीं रुकदा ते ना ही इसनूं किसी तरीके नाल रोकिया जा सकता है। जिहड़ा समा एक बारी बीत जाता है वो वापस नहीं आउंदा। इस करके सानूं वर्तमान समय का पूरा पूरा सही उपयोग करना चाहिए है। अगला प्रश्न है, कवि किसनूं वार वार रोकण की कोशिश कर रहा है। तो इसका उत्तर है, कवि समय नूं वार वार रोकण की कोशिश कर रहा है। उस तो अगला प्रश्न है, सानूं अपने जीवन विच सफल होने लई की करना चाहिए है। तो इसका उत्तर है, सानूं अपने जीवन विच सफल होने लई समय का सही उपयोग करना चाहिए है तो समय नूं व्यर्थ या फालतू नहीं गवाउणा चाहिए। अगला साडे कोल प्रश्न है, कवि समय नूं रोकण लई की यतन करता है। तो कवि समय नूं रोकण लई समय दीआं मिन्नतां करता है, तरले मिन्नतां करता है, उसनूं फड़ फड़ के अपने वल खिंचण दा भी कोशिश करता है। इस तो इलावा वो होर भी बहुत सारियां रुकावटां पाउंदा है, पर समा नहीं रुकदा। साडे कोल आखिरी प्रश्न है, कविता का संखेप सार अपने शब्दां विच लिखो। तो तुसीं जिहड़ी कविता हुण सुनी है, उसके अर्थ समझे ने, तुसीं अपने शब्दां विच भी इसका सार लिख सकते हो। इस तो इलावा तुहानूं इस कविता विच जो टिप्पणी रूप विच इस कविता का छोटा सार किताब विच ही दिता गया है, उसनूं भी तुसीं इस कविता के संखेप सार विच लिख सकते हो, जिस विच कि लिखिया होया है, भाई वीर सिंह की कविता समा विच समय के महत्व नूं उजागर किया गया है। भाई वीर सिंह ने अपनी कविता विच समय के निरंतर चलण वाले लक्षण बारे विचार की है।
कवि का मत है कि समय नूं किसी भी तरीके नाल रोकिया नहीं जा सकता। समा हर रुकावट नूं तोड़ के अपनी गति नाल अगे वधदा रहिंदा है। इस करके कवि मनुख नूं समय की कदर करन दा संदेश देना चाहुंदा है। कविता अनुसार एक बार बीतिया समा मुड़ के हथ नहीं आउंदा ते इसलिए सानू मनुख नूं वर्तमान समय का पूरा सदुपयोग करना चाहिए है। इस तो बाद साडा अगला प्रश्न है, हेठ लिखिया सतरां नूं पढ़ के पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दिओ। ते सतरां हन, हो अजे संभाल इस समय नूं कर सफल उडंदा जावदा, ए ठहरन जाच न जानदा लंघ गया न मुड़ के आमदा। तो इस विचों सानू पहला प्रश्न पूछा गया है, हथ विचों कौन निकल रहा है। तो इसका उत्तर है हथ विचों समा निकल रहा है। अगला प्रश्न है, समय नूं किस दा वल नहीं आउंदा। इसका उत्तर है समय नूं रुकन दा वल नहीं आउंदा। तो अगला प्रश्न है, उपरोक्त सतरां विच कवि दे मन विच किस तरह का डर है। उपरोक्त सतरां विच कवि दे मन विच ये डर है कि समा जिहड़ा हथों एक बारी निकल जाता है वो वापस मुड़ के नहीं आउंदा। तो अगे हन, हेठ लिखिया काव्य सतरां की प्रसंग सहित व्याख्या करो। सतरां हन, रही वास्ते कत समय ने एक न मन्नी, फड़ फड़ रही तरीक समय खिसकाई कन्नी। तो इसका प्रसंग आएगा, ये काव्य सतरां साडी पंजाबी पाठ पुस्तक ਸਾਹਿਤਕ किरना भाग विच एक विचों भाई वीर सिंह जी की लिखी हुई कविता समा विचों लईआं गईआं हन। इस कविता विच कवि समय के महत्व अते उसनूं व्यर्थ ना गवाउण बारे सानूं संदेश दिंदा है। इस तो बाद व्याख्या लई तुसीं इस कविता की जो मैं तुहाडे सामने अर्थ कीते सन उस विचों सुन के आप भी व्याख्या लिख सकते हो, तो मैं तुहानूं एक बारी फिर भी दस दिंदी हाँ। तो इन्हां सतरां विच कवि कह रहा है कि मैं समय दीआं बहुत मिन्नतां कीतियां, बहुत तरले कीते, उसनूं रोकण की बहुत कोशिश की, पर समा ना रुकिया, समय ने मेरी एक भी गल ना मन्नी। मैं फड़ फड़ के समय की कन्नी नूं खिच्चण की कोशिश की, उसके पल्ले नूं खिच्चण की कोशिश की, पर समा अपना पल्ला छुड़वा के मेरे हथों खिसकदा गया। इस तो बाद इस पाठ पुस्तक विच कवि की एक होर कविता दिती गई है जो कि हुण तुहाडे सिलेबस विच नहीं है, टुकड़ी जग तो न्यारी, इस करके असीं ये नहीं कर रहे। तो उस तो बाद अभ्यास विच आओ कुछ होर करिए अधीन तुहाडे कोल 5 प्रश्न ने, जिस विचों कि 2 प्रश्न इस समा कविता नाल संबंधित हैं। असीं वो डिस्कस कर लैंदे हाँ। जिस विच कि पहला है, तुसीं अपने समय का सदउपयोग किवें करदे हो। हफ्ते का अपना पूरा प्रोग्राम बना के समझाओ। तो इत्थे तुसीं दसना है कि तुसीं अपना समा सही तरह किवें प्रयोग करते हो। तुसीं अपने पूरे हफ्ते का एक प्रोग्राम बना के, मतलब जिसनों असीं कह सकते हैं टाइम टेबल, वो बना के तुसीं इस चीज़ नूं, इस प्रश्न का उत्तर देना है कि मैं सवेरे उठ के सोमवार नूं की करदा, मंगलवार नूं की करदा हाँ, बुधवार नूं की करदा हाँ, जां अगर तुसीं ओही चीज़ हर रोज़ कर रहे हो तां भी तुसीं उसनूं पूरा दसना है। इस तो बाद जिहड़ा 5वां प्रश्न है वो तुहाडे इस कविता नाल संबंधित है। फर्ज करो तुसीं समय की साम संभाल उपर कोई भाषण देना है, तुसीं ये किवें करोगे, लिख के समझाओ। तो तुसीं एक भाषण जिसनूं स्पीच कहंदे ने, जिस नाल कि तुसीं दूसरिਆਂ ਨੂੰ भी इस गल लई मोटिवेट कर सको कि समय नूं संभाल के रखना चाहिए, इसनूं व्यर्थ नहीं गवाउणा चाहिए। तो तुसीं ये भाषण विच की कुछ लिखोगे, तुसीं ये भाषण लिखना है जिसनूं कि तुसीं किसी नूं होर नूं भी समझा सको। तो उस विच तुसीं दसोगे कि समा क्यों नहीं गवाउणा चाहिए, समा गवाउण दे की नुकसान हुंदे ने, ਜਿਹੜੇ लोग समा गवाउंदे उन्हां नाल की हुंदा है, ते समा संभाल के रखण दे की लाभ हुंदे हन। इस तो बाद हन साडे कोल पाठ के आधार ते ठीक जां गलत दे निशान लगाओ। इस विच दोहां कवितावां दे प्रश्न हन। तुसीं चाहो तो सिर्फ समा कविता नाल संबंधित प्रश्न कर सकदे हो, पर क्योंकि बिल्कुल छोटे हैं तो दोहां दे भी करन विच कोई हर्ज नहीं। मैं तुहानूं सारिआं दे उत्तर दस दवांगी। इस विच पहला है, समा रुकन की जाच नहीं जानता, ये बिल्कुल सही है। अगे है, सोहनी ने मुट्ठी विचली वस्तु आसमान वाल सुट दी, ये गलत है, उसने धरती वाल सुट्टी। अगे है, कुदरत देवी ने हौली हौली चल के मुठ भरी, ये भी गलत है, उसने भज के मुठ भरी। अगे है, अर्शां दा नज़ारा बहुत सुंदर सी, ये बिल्कुल सही है। तो आखिरी है, आसमानी छू कारण धरती सुंदर बन गई, ये भी बिल्कुल सही है। इस तो बाद हैं साडे कोल खाली थावां भरो, जिस विच कि पहला खाली स्थान है, समय नूं डैश नहीं रखा जा सकता, इस विच आएगा फड़ के। अगला है, डैश हथ विचों खिसकदा जांदा है,
इस विच आएगा समा। तीसरा वाक है समय के सामने डैश पाउण का कोई फायदा नहीं है, तरले पाउण का कोई फायदा नहीं है। चौथा है हथों निकलते समय की डैश नाल इसनूं सफल बनाना चाहिए है, वरतों नाल इसनूं सफल बनाना चाहिए है। तो आखिरी खाली स्थान है कश्मीर डैश नज़ारियां की धरती है, कश्मीर कुदरती नज़ारियां की धरती है। इस तो बाद साडे कोल हन विरोधी शब्द लिखो, जिस विच की पहला शब्द है वेग, जिसका विरोधी शब्द बनेगा अवेग जां गतिहीन। अगे है तरीक, तरीक मतलब अपने वाल खिंचना, तो इसका विरोधी शब्द बनेगा तक मतलब दूर नूं तकना। उस तो बाद है अटक, अटक मतलब रोक, तो इसका आएगा बेरोक। उस तो बाद है संभाल, तो इसका विरोधी शब्द आएगा गुआ। अगला शब्द है सोनी, जिसका विरोधी शब्द आएगा पैड़ी। अगला शब्द है मिठियाँ, जिसका विरोधी शब्द आएगा कौड़ियाँ जां खट्टियाँ। उस तो बाद है परना, जिसका विरोधी शब्द आएगा डोलना जां खाली करना। ते आखिरी साडे कोल शब्द है धुप, जिसका विरोधी शब्द होवेगा छां। इस तो बाद साडे कोल हन समानार्थक शब्द लिखो, जिस विच की पहला शब्द है मिठियाँ, तो मिठियाँ का समानार्थक शब्द हो सकता है रसीलियाँ जां स्वादलियाँ। अगे है सुंदर, सुंदर का समानार्थक शब्द सोहना खूबसूरत। अगे है आसमान, आसमान का समानार्थक शब्द आकाश गगन अंबर। उस तो बाद साडे कोल है वेग, वेग के समानार्थक शब्द हो सकते हैं गति ते चाल। इस तो बाद साडा आखिरी प्रश्न है समय नूं वेला भी आख्या जाता है, इसनूं होर किहड़े नावां नाल पुकारिया जाता है। तो यह भी असी असल विच समय के समानार्थक शब्द ही दसने हैं कि होर किहड़े इहो जिहे शब्द हैं जिहड़े कि समय शब्द का इक्को जिहा अर्थ रखते हैं। तो इस विच असी लिख सकते हैं कि समय नूं वक्त घड़ी पहर आदि भी कहा जाता है। तो बेटा यह है तुहाडा पाठ समा। मैनूं उम्मीद है कि तुहानूं ये कविता समझ आई, तुसीं समय का सदउपयोग करना भी जरूर सीखोगे। मैनूं उम्मीद है कि तुहाडे चों बहुत बच्चे पहला ही समय का सदउपयोग करते हैं, तो जिहड़े नहीं भी करते वो हुण तो करना शुरू कर देंगे। तो नाल ही तुसीं इस वीडियो की सहायता नाल इस कविता का अभ्यास भी बहुत आसानी नाल हल कर लवोगे। तुहाडी अगली कविता लैके मैं बहुत जल्दी हाजिर होवांगी। उदों तक इस वीडियो नूं लाइक ते शेयर जरूर करो, तो यूट्यूब चैनल पंजाबी स्कूल नूं सबसक्राइब भी करो। मैनूं कमेंट्स विच जरूर दस्सिओ कि तुहानूं ये कविता किस तरह की लगी। रमनदीप कौर नूं दिओ इजाज़त। धन्नवाद।